As we are discussing the second section of macroeconomics, that is economic development of Pakistan, and today we will discuss in the topic of agriculture sector, agriculture sector development in Pakistan, and we will discuss MCQs about this topic. Agriculture sector in Pakistan. We will discuss the following topics under this section. That is the importance and role of agriculture sector, problems faced by agriculture sector in Pakistan, and measures to remove problems of agriculture sector and development of agriculture sector in different plans in different times periods. No, first of all, what we will discuss under the heading of importance of agriculture in Pakistan and what is its importance in case of Pakistan. That it is a major contribution to GDP and it is a source of food availability in the country and supply of raw material to the industries, a big source of employment, industrial development, and source of foreign exchange earnings and extended markets. These are the points. These are the points which highlight the importance of agriculture in our country. What are the problems faced by agriculture sector in Pakistan? The main problems are the defective land tenure system of country, defective rural socio-economic setup, and soil health problems, and weak financial position. Weak financial position basically concerned with the small farmers वगैरह जो उनसे हैं छोटे किसान जो उनसे उनको उनकी financial position काफ़ी weak होती है. That is a big problem in case of agriculture sector. And limited cultivable area, and lack of cold stores and warehouses, and agriculture marketing problems. These are the main problems which are faced by the agriculture sector in Pakistan. What are the measures to remove agriculture problems? The main points under this heading is that socio-economic changes in the rural life. मतलब जो socio-economic setup एक set हो चुका है हमारी country में काफ़ी अरसे से उसको हम change उसमें लेके आए and better use of land resources and improvement of water management. मतलब ये जो ड्रेन से नुकसानात होते हैं इसको किस तरह मैनेज किया जाए, ये पानी की ज़्यादती की को भी मैनेज किया जाए, पानी की कमी को भी मैनेज किया जाए. एंड रिमूवल ऑफ फाइनेंशियल हैज़र्ड्स ऑफ द फार्मर्स, मतलब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो फेस करने पड़ते हैं स्मॉल फार्मर्स को उनको रिमूव किया जाए. एंड इम्प्रूविंग द एजुकेशन रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन या रिसर्च है उसमें एक लेटेस्ट रिसर्च को लाना चाहिए to improve the agriculture sector of the country. Now we will discuss the first MCQ is that which sector is responsible for making the availability of food possible. That is a B option is the right one. That is the agriculture sector, which basically यही provide करती है कि food resources like wheat, rice, and different other vegetables वगैरह. So B is the right option. Agriculture sector becomes responsible for providing the raw materials to which industries basically जो agriculture sector है ये raw material इनको provide करती है. इसमें A and B are the right options. That is textile industry and the sugar industry. And C the consulting firms basically that is no wrong option. A and B are the right option. Textile industry को basically ये raw material provide करती है in the form of cotton and sugar industry को ये provide करती है शुगर केन वगैरह, मतलब ये जो फसलें वगैरह होती हैं गन्ने की ये उनको शुगर इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती हैं टू प्रोड्यूस द शुगर इन द कंट्री. सो A and B are the right option. Population living in rural areas are directly dependent on which thing for their livelihood. A is the right option. Basically rural areas में जितने भी लोग हैं वो highly dependent है upon agriculture sector and उनका source of income basically agriculture पे ही lie करता है. So A is the right option. According to Lewis and Reynolds, which is the right option, that is a B1. That according to these are the basically development economists, and according to those economists, agriculture sector of developing countries is mostly oversaturated. मतलब ये economist का ये ख्याल था कि जो developing countries होती हैं मतलब कि जो अभी develop नहीं होती, develop कर रही होती हैं with the passage of time, इनका agriculture sector में लोग ज़्यादा employed होते हैं. मतलब agriculture sector oversaturated
सैचुरेटेड होता है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उनका एग्रीकल्चर पे ही होता है। हालांकि उनका फोकस इंडस्ट्री सेक्टर पे भी होना चाहिए, और जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं एग्रीकल्चर को उनको शिफ्ट कर देना चाहिए टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। For countries like Pakistan, the agricultural exports can be helpful for B and A and B are the right option, easing the balance of payment difficulties and earning foreign exchange. मतलब पाकिस्तान जो बेसिकली रिलाई करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर पे, सो अगर वो इन एक्सपोर्ट्स की वजह से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट वगैरह होता है उसको इजीली रिमूव कर सकता है बाय इन्हांसिंग देयर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज को भी की वैल्यू को भी राइज कर सकता है with their exports. A and B are the right option. Development of agriculture sector results, all of the options are the right one. Markets will be extended, economies of scale will be reaped, and economic development of the country will be facilitated. मतलब अगर डेवलपमेंट को भी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करें तो उससे ओवरऑल एक इकोनॉमी पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि अदर मार्केट्स पे भी एक्सटेंड करती हैं, अदर इंडस्ट्री भी पे भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल राइज करती है और ओवरऑल एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बेहतर हो जाती है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। Extending market, what we mean by extending market, it is with the rise in farmers income the industries of other products will develop. मतलब हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट एक्सटेंड किस तरह होती है कि अगर एक मार्केट को आप किसी तरह डेवलप करें, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को, तो फार्मर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, उसकी इनकम ज़्यादा होगी। जब उसकी इनकम ज़्यादा होगी तो वो दूसरी प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज से ख़रीदेगा, लाइक ही कैन परचेज टीवी फ्रॉम टीवी इंडस्ट्रीज़ वगैरह। तो इस तरह उनकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ की भी प्रोडक्शन एंड सेल ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से दूसरी मार्केट्स भी एक्सटेंड करेंगे। And economies of scale, what does we mean by economies of scale? As a company grows and production units increase, a company will have a better chance to decrease its cost. Economies of scale बेसिकली किस चीज़ को हम, इसका मतलब क्या है कि ये रिलाई करती है कि अगर कंपनी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही है लेकिन उनकी यूनिट कॉस्ट उनकी डिक्रीज़ कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है और उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेटर जा रही है। ठीक है जी। Is there exist any discrepancy between the potential and actual agriculture outputs? A is the right option, yes. पाकिस्तान के केस में पोटेंशियल ज़्यादा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन एक्चुअल आउटपुट कम है। मतलब we can produce more agriculture products by applying different modern techniques, but we can't get success due to old techniques of production. Discrepancy exists due to poor organizational and management of the agriculture sector. मतलब वही पुराने ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के तरीके चले आ रहे हैं आज, इसकी वजह से दोनों में गैप पड़ता है एक्चुअल और पोटेंशियल आउटपुट में। Question is contribution of agriculture to GDP of Pakistan is B is the right option, that is 18.5%. मतलब उसकी contribution GDP में इतनी है, 18.5% is the right figure. How much livestock has share in agriculture? It is basically 59%. मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में लाइवस्टॉक का जो शेयर है दैट इज 59%. बी इज द राइट ऑप्शन. लाइवस्टॉक हैज शेयर इन जीटीपी में इसका जो शेयर है दैट इज B1 11%. Agriculture has labor force, basically it is 42.3% of the labor force or of our country is utilized in agriculture sector. B is the right option. What is the defective land renewal system? And when we talk about that land renewal system in Pakistan is defective, and then what does it mean? All of the options are the right one. That it is mean that unpleasant relationship between land owners and cultivators, and tenants cultivate the land but major share taken away by the owners, and the land is divided and subdivided into smaller units. Basically agriculture में development इसलिए नहीं हो पाती कि जो small farmers हैं उनमें land owners में और cultivators में एक relation एक pleasant नहीं होता, अनप्लेजेंट होता है। मतलब जो मेन लैंड ओनर्स हैं वो मेजर शेयर ऑफ द प्रोडक्शन वो ले लेते हैं, और बेसिकली जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको काफ़ी उस हिसाब से मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनका इनकम जनरेट नहीं हो पाती उस हिसाब से। और लैंड बेसिकली डिवाइड होती है और सब डिवाइड होती है इंटू स्मॉल यूनिट्स में, मतलब फैमिली में आकर रिश्तेदारों में डिवाइड हो जाती है, एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं हो पाती।
ऑन पब्लिक सेक्टर। तो ये बेसिकली डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें ये चीज़ें हों तो वो एक डिफेक्टिव सिस्टम होता है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। What does defective rural socio-economic setup is facing by agriculture sector of Pakistan? इसमें क्या है जी, रूरल सोशल इकोनॉमिक सेटअप में क्या डिफेक्ट जो उनसे हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। इसमें भी सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं या these are the right one, that mass poverty in the villages coupled with illiteracy, conservative minds and traditionalism, and lands are source of income for poor cultivators, while these are symbols of power for the big farmers. And agriculture sector is still having its primitive character, lacking the commercialization, and peasants are least innovative and hardly mobile. एक डिफेक्टिव रूरल सोशो इकोनॉमिक सेटअप ये है जी कि इसमें एक तो गांव में एजुकेशन नहीं है, माइंड्स कंजर्वेटिव है, और एक ट्रेडिशन जो चली आ रही होती है लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसमें कुछ चेंज लाने की कोशिश नहीं करते हैं। और लैंड्स जहाँ पे पुअर कल्टिवेटर्स के लिए सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ वहीं पे वो बिग फार्मर्स उनको एक अपने पार का सिंबल समझते हैं। बेसिकली वो इसको इस लिहाज से यूज़ नहीं करते कि ये मुल्क के सेक्टर को किसी तरह स्ट्रॉन्ग किया जाए। बेसिकली वो उसको अपनी पार के लिए यूज़ करते हैं लैंड को। और एग्रीकल्चर सेक्टर स्टिल मतलब उसमें कमर्शलाइजेशन नहीं आ रही, उसमें पुराने तरीके यूज़ किए जा रहे हैं, और उनसे जो फार्मर्स जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो उनको इनोवेशन उनको उनके सामने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाती, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, कोई रिसर्च वर्क उनके सामने नहीं होता, वही पुराने तरीके से वो एक प्रोडक्शन चली आ रही होती है। और वो हार्डली मोबाइल होते हैं, वो उसमें कोई मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, उसी जगह पे वो स्ट्रिक्टली रहते हैं और कोई चेंज नहीं आता है ओवरऑल। So these are the defects which are found in the rural social economic setup in Pakistan. Which types of social health, soil health problems the agriculture sector of Pakistan is facing? All of the options are the right one. Various health problems are facing in the agriculture sector, and so basically soil जो है वो ये problems face करती है. That is water logging, salinity, defective irrigation system, scanty water, flood results in soil erosion, use of traditional techniques, that is reduced electrification system. मतलब ट्रेडिशनल टेक्निक्स चली आ रही हैं, जो नई टेक्निक्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल यूज़ होते हैं, ये पम्प्स वगैरह ये कम यूज़ होते हैं, और ट्रेडिशनल टेक्निक से ही ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। So all of the options are the right one. All of these options are the soil health problems. What is water logging? हमने वाटर लॉगिंग की बात की। बेसिकली वाटर लॉगिंग क्या है? It occurs whenever the soil is so wet that there is insufficient oxygen in the pore space for plant roots to be able to adequately respire. वाटर लॉगिंग पानी इस हद तक आ जाता है सॉइल में कि वो जो ऑक्सीजन है वो इतनी insufficient हो जाती है किसी भी प्लांट की प्रोडक्शन के लिए। What is salinity? It is basically it can decrease plant growth and water quality, resulting in lower crop yields and degraded stock water supplies. Excess salt affects overall soil health, reducing productivity. Salinity basically है कि पानी में पानी की क्वालिटी जो होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव सॉल्ट, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। What is soil erosion? It is a displacement of the upper layer of soil. Soil की जो upper layer होती है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, वो डिस्प्लेस हो जाती है किसी भी वजह से। हैवी रेन्स की वजह से भी हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है, या एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से भी हो सकती है। So these are the various types of soil health problems. Now what is the vicious circle of poverty in the agriculture sector of Pakistan? हम इसको एक फिगर के थ्रू डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक फिगर प्रेजेंट की गई है इसमें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इस किस्म की पॉवर्टी फेस करनी पड़ती है बाय द स्मॉल फार्मर्स कि वो एक विशियस सर्कल बन जाता है, मतलब उस विशियस सर्कल में से वो फार्मर्स निकल ही नहीं पाते। सो वी कैन डिस्कस इट बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम दैट बेसिकली एग्रीकल्चर इज स्टार पुअर बिकॉज देयर इनकम आर लो। मतलब वो पुअर होते हैं क्योंकि उनकी इनकम लो होती है, एंड देयर इनकम इज लो बिकॉज एग्रीकल्चर आउटपुट्स आर लो। Agriculture outputs are low because productivity of lands are low, and productive lands are low because flow of investment in agriculture sector is low. And why the flow of investment in the agriculture sector is low? Because savings of the farmers are low, and सेविंग क्यों लो है जी? बिकॉज ऑफ इन लो इनकम्स ऑफ द फार्मर्स। मतलब आप शुरू के पॉइंट देखें कि इनकम जो सी है
वो पुअर क्यों है? क्योंकि इनकम लो है। और एंड का पॉइंट देखें, उसमें भी यही पॉइंट है कि फार्मर्स की इनकम लो है। बेसिकली विशियस सर्कल होता ही वही है जो कि एक पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पे खत्म हो जाए ड्यू टू वेरियस रीजन। सो वी कैन डिफाइन द विशियस सर्कल पॉवर्टी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। अच्छा जी, the 15th question is the reduced cultivable area is attributed to which types of factors? All of the options are the right one. इसकी various factors हैं, that is low capital, shortage of water, unused state lands, defective official policies, and increase in the use of land for non-agricultural purposes. All of the options are the right one. 16th question is the problems after harvesting. हार्वेस्टिंग के बाद क्या फार्मर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? दैट A, B and C are the right one. Because of weak financial position, farmers are unable to construct warehouses and cold stores. मतलब वो हार्वेस्ट करने के बाद उनके पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनके अपने स्टोर हाउसेज एंड वेयर हाउसेज नहीं होते ड्यू टू द वीक फाइनेंशियल पोजीशन, एंड बी दैट दे हैव टू स्टोर देयर क्रॉप्स इन देयर हाउसेज अंडर द मर्सी ऑफ रैट्स एंड अदर इंसेक्ट्स. अगर वो क्रॉप्स को अपने घर में स्टोर करते हैं तो उनको वेरियस किस्म की ये जो इंसेक्ट्स हैं और रैट्स वगैरह हैं इनको फेस करना पड़ता है जो कि क्रॉप्स को ख़राब भी कर देती है. एंड द प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ आर वेरी एक्सपेंसिव. और अगर वो प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज की तरफ जाएँ तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और वो अपनी वीक फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से उनको अफोर्ड नहीं कर पाते. सो आफ्टर हार्वेस्टिंग all of these problems which have to be faced by the small farmers. PASCO stand for basically it stand for Pakistan Agriculture Storage and Services Corporation. मतलब ये जो लफ्ज़ है ये इसका एब्रिविएशन ये है. B is the right option. Behavior of RTRs and commission agents, B is the right option. It is furnished with the exploitation of small farmers. Basically, these are the commission agents which build the relationship between the producers and the buyers. So इनका जो behavior है जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो बेसिकली वो एक्सप्लॉयट करते हैं स्मॉल पीजेंट्स को. मतलब वो कमीशन हाईली चार्ज करते हैं और मतलब डिफरेंट किस्म के उनके जो बिहेवियर हैं दैट इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर द कंट्री. सो बी इज़ द राइट ऑप्शन. Who are the RTRs? Basically B and C are the right option. मतलब इसके definition हम कह सकते हैं कि they are the commission agents, a link between farmers and buyers of their produce, and they arrange for the auction and delivery of the harvested crop to the buyers. तो basically इनको हम इस तरह define कर सकते हैं और इनका ये function है. So B and C are the right option. Which of the following problems the farmers have to face during agriculture marketing? A, B, and C are the right options. Following these are the all problems which have to be faced by the farmers. Then areas take the advantage of weak financial position of the farmers, and B is that farmers while selling their products have to give a lot of commission and deductions in the form of cash and grain. मतलब उनको पैसे भी देने पड़ते हैं और काफ़ी किस्म का उनकी जो प्रोडक्शन ग्रेन की फॉर्म में देनी पड़ती है. And C is that they have to face tedious and complicated practices regarding accounts. मतलब ये various problems हैं जो कि farmers को face करनी पड़ती हैं during agriculture उनकी प्रोडक्शन की मार्केटिंग के दौरान. 21 question is that in Pakistan the policy makers always prefer B is the right option, that is industry and commerce over agriculture. पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकर उनकी जो पॉलिसीज जो बनती हैं बेसिकली वो हमेशा इस तरह बनती हैं कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ऊपर आते हैं एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर हमेशा एक लेस इम्पोर्टेंस एक सेक्टर रह जाता है. सो मतलब ज़्यादा एम्फेसिस उनका इंडस्ट्री और कॉमर्स पे होता है, एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा नहीं होता. Second question is agricultural colleges, research institutes and universities in Pakistan. B is the right option. They are still not capable to improve the level of agricultural research. तो अभी तक उनकी कोई ऐसी रिसर्च वो या टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज़ वो इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए जिसकी वजह से पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर इम्प्रूव कर जाए. Third one is that why the public policy of Pakistan about agriculture is inadequate for the development of agriculture production. All of the options are the right one. मतलब public policy पाकिस्तान की adequate क्यों है उसकी various reasons हैं कि different government programs for the provision of different facilities are confined to the big and influential farmers. मतलब programs इस तरह डिज़ाइन होते हैं कि वो basically big और influential farmers को benefit दे रहे होते हैं, not for the small farmers. And provincial agriculture department fails to provide
threshers, bulldozers, tractors and the heavy agriculture machinery and जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो भी बेसिकली जो डिपार्टमेंट्स बने होते हैं वो बेसिकली जो मेन जो मशीनरी है जो जिससे टेक्निक्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे होते फार्मर्स को, दैट इज़ थ्रेशर, ब्लोअर, वेरियस किस्म की जो मशीनरी है। और नो इज़ द नो प्रोविजन टू सप्लाई द मशीनरी एंड इक्विपमेंट टू पुअर फार्मर्स एट रिड्यूस एंड कंसेशनरी रेट्स। मतलब अगर पुअर फार्मर्स के लिए भी अगर मशीनरी इक्विपमेंट है भी तो या तो बहुत महंगा है या अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें कोई रिड्यूस कॉस्ट नहीं करते, उनके लिए कोई कंसेशन वगैरह नहीं रखी जाती। तो ये पॉलिसी इस तरह बनती है कि वो जो बेसिकली जो बेसिक है जो स्मॉल फार्मर्स हैं वही डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन भी इतनी नहीं होती, मतलब सारा फिर एक ओवरऑल जो सिस्टम है वो उसका इम्पैक्ट सारे पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं हो पाता पाकिस्तान में। Which type of socio-economic changes in rural areas can remove the agricultural problems? All of the given statements are the right one कि हम इन चेंजेस के थ्रू एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सकते हैं। ए इज़ द प्रोविजन ऑफ इनपुट्स एंड सप्लाईज टू द फार्मर थ्रू वन विंडो ऑपरेशन, मतलब एक ही सिस्टम रखा जाए, चाहे वो स्मॉल फार्मर्स हैं या लार्ज फार्मर्स हैं, उनको एक ही विंडो ऑपरेशन के थ्रू उनको इनपुट्स एंड सप्लाईज दी जाए, मतलब फेवर ना दी जाए किसी भी लार्ज फार्मर को। एंड इट्स बेटर दैट प्राइवेट सेक्टर बी इनकरेज टू एस्टैब्लिश seed production and adoptive research farms in different parts of the country, and social and infrastructural facilities have to be provided to retain the rural brain drain, मतलब रूरल एरियाज़ की सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को इस तरह इम्प्रूव किया जाए कि वहाँ पे जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो वहीं पे रहना पसंद करें, वो अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव ना करें, ताकि उनके ब्रेन को यूज़ किया जा सके फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड डी इज़ दैट इज़ कमोडिटी मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम शुड बी लॉन्च्ड, मतलब कमोडिटी को किस तरह मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है, इस तरह के कोई प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएँ। दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस which can be brought in the rural areas to remove the agriculture problems. So E is the right option. How we can use land resources in a better way to develop the agriculture sector? और इसमें भी सारी options right one है कि हम land को किस तरह use कर सकते हैं कि वो agriculture sector को improve किया जा सके। Policy makers should ensure the presence of land owners near their farms. Basically होता ये कि land owners रहते कहीं पे हैं और उनकी land कहीं पे होती है, मतलब वो उसको land को just पावर ऑफ सिंबल समझते हैं, मतलब उनको ये नहीं होता कि वो लैंड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे या उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे। सो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो लैंड ओनर्स को उन एरियाज़ पे रहने के लिए मजबूर करे जहाँ पे उनकी लैंड एग्जिस्ट करती है, ताकि उनका ध्यान लैंड के प्रोडक्टिविटी पे भी रहे। एंड द बी इज़ द फर्टिलिटी ऑफ लैंड शुड नॉट बी डिटोरेटेड, मतलब उसकी फर्टिलिटी को रिड्यूस नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ सैलिनिटी, इन फॉर्म ऑफ वाटर लॉगिंग, या वो थर्ड वन इज दैट सोयल एरोजन, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स को नहीं होना चाहिए लैंड के लिए। एंड डबल क्रॉपिंग सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस पर्टिकुलरली इन मोर फर्टाइल एरियाज़, मतलब एक डबल क्रॉपिंग सिस्टम भी होता है जहाँ पे मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए डबल क्रॉपिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो बेसिकली इसको भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है जहाँ पे जो एरिया ज़्यादा फर्टाइल है। एंड डी इज़ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फेल्योर, प्राइवेट सेक्टर शुड कम फॉरवर्ड टू सजेस्ट measures required the maximum regarding the maximum and efficient use of land, तो प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज करना चाहिए इस काम के लिए। सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर द राइट वन। How the financial hazards of the farmers can be removed, इसमें भी से वेरियस किस्म के दिए गए हैं, ये सारी ऑप्शन उनके राइट वन है, इनको पढ़ लीजिए। 7th, what kind of improvement education and research need to remove agriculture problems, ये भी various types of improvement हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा कि रिसर्च को इम्प्रूव करना चाहिए, फंड्स उनसे हम एलोकेट होने चाहिए रिसर्च वर्क के लिए, एंड जो रिसर्च वर्क के जो बाद में जो बेनिफिट्स हैं रिसर्च के वो कॉमन फार्मर्स तक पहुंचने चाहिए। एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू क्रॉप्स वेराइटीज़ एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी इनपुट्स एंड सर्विस एट द डोर स्टेप ऑफ द फार्मर्स टू enable them to effectively adopt the advanced technologies and increase their income. So all of the improvements are the right one. Which crop is backbone in Pakistan economy? That B is the right option, that is cotton. ये वेरियस टाइम पीरियड के वो दिए गए हैं डाटा है अबाउट दी एग्रीकल्चर ग्रोथ इन परसेंटेज फॉर्म में है, और इसमें बेसिकली बेस ही है जो उनसे अबाउट 2005 to 2006 है,
बेस के वर्ड में ऐसा गायब है, तो बेसिकली वो बेस को शो कर रहा है। और 2005-6 को बेस ईयर बना के आगे 2011 से ऑनवर्ड 2019 तक डिफरेंट एग्रीकल्चर ग्रोथ परसेंटेज दी गई हैं। मतलब क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, अदर क्रॉप्स एंड कॉटन गिनी गाइन, एंड लाइफ स्टॉक का दिया गया, फॉरेस्ट्री का दिया गया, फिशिंग का दिया गया है। ये आप ग्रोथ रेट मतलब बेसिकली एमसीक्यूज के फॉर्म में आ भी सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया ले लें कि वो डिफरेंट पीरियड्स में किस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ग्रोथ रेट रहा है। Give your feedback in the comment section below, and you can share my video, and you can subscribe my channel as well.